राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हम बात कर रहे हैं, जो टॉपिक है वो आज हम मॉडर्न की बात करेंगे। मॉडर्न की किसकी बात करेंगे कि स्नेक बाइट, यानी कि अभी तक हम जो सर्पदंश पढ़ रहे थे अब उसमें हम स्नेक बाइट पे आ गए हैं। तो कॉमन पॉइजनर स्नेक्स कौन से होते हैं? एलिफेंट्स, इंडियन कोबरा, कॉमन क्रेज, वाइपर्स, रुसल वाइपर एंड सॉ स्केल वाइपर्स। ठीक है। वेनम्स की बात करें, मोस्ट वेनम आर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट टॉक्सिन्स। प्रोटीनस एक्ट एज साइटोटॉक्सिन causing the local swelling and damage at the site of bite. Neurotoxin interfere with the neuromuscular transmissions. Some phospholipase A2 toxin also damage myocytes directly. Some venoms contain hemoglobins which causes the bleeding. Coagulopathies may be used by the common actions of venom. Sign and symptoms depend upon the type of snake venom. Elapids local effects. Bite of crates produce little pain and negligible local changes, but cobras causes the immediate pain and rapid swelling with the enlargement of vaginal lymph nodes. Local blistering occur with a few hours and the necrosis develop into within a few days. Vomiting may be begin 30 minutes after, and it is an early evidence of systematic poison. Neurotoxic paralytic symptoms: blurred vision, paraesthetic around mouth and gums, hypersalivation, congestion of conjunctiva, drowsiness. Signs है protosis, paralysis of upward gaze, total external ophthalmia, inability to open the mouth, speak, and swollen respiratory paralysis. Viper, local effect, pain, local swelling and bruising within 1 to 8 hours. Tender enlargement of regimen lymph node. It may be spread to the whole limbs and the adjacent trunk over next 2 to 3 days. Hemostasis abnormality, spontaneous bleeding from the gums, nose, GI tracts, GIC scan, etc. Next one है आपका it may spread to the whole limbs and adjacent trunk over next 2 to 3 days. Hemostatic abnormality, spontaneous bleeding from the gums, nose, GI tract, skin, etc. Intracranial retroperitoneal and GI hemorrhages may prove to be fatal. Definitions causing the incoagulative blood may be found within 1 hour of the bite. Shock and the hypotension due to the hypovolemia. Conjunctival, facial, pulmonary edema, angioedema, abdominal colic, diarrhea, cardiac arthritis, acute renal failure, very common after bite of Ruspel viper. Destruction of skeletal muscles, which lead to the painful myopathy and paralysis. Neurological effects: some vipers produce the neurotoxic symptoms with the myoglobulea. Management principle: local management measure to prevent the absorption of the poisons. Applications of the pressure bandage 2-inch proximal to the site of bite. Incision and suctions of the blood. It can remove 50% of the poison. If patient comes to the late, the swelling and inflammation should be treated with to give the antibiotic. Surgical debridement and the skin grafting at a later stage in case of extensive necrosis. Anti-venom sensitivity should be given by the testing by the giving in intradermal test dose 20 ml of C1 given by IV as first dose slowly over 20 minutes. Second dose can be repeated after 2 hours if symptoms persist. Indication for anti-venom: hypertension, shock, CVS toxicity, pertussis, symptomatic bleeding, dark urine, tender, stiff muscles, acidosis, elevated and serum enzymes. General treatment: tetanus toxoid 1 ml intramuscular antihistamine, analgesic for the pain, corticosteroids, IV hypocortisone 100 to mg to 6 hourly in case of severe shock. Management of complication: manage respiratory paralysis, oxygen therapy, acute renal failure, IV fluids, mannitol, shock plasma, वॉल्यूम एक्सपेंडर, ब्लड ट्रांसफ्यूशन. सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट. व्हाट इज स्कॉर्पियन बाइट? वृश्चिक दंश. वृश्चिक एक अत्यंत विषैला कीट होता है। यह कीट पत्थर, कूड़े के ढेर, उपलों के ढेर, चूहों इत्यादि के बिलों में पाया जाता है। सामान्य भाषा में इसे बिच्छू भी कहा जाता है। वृश्चिक प्रायः रात्रि में ही अपने स्थान से शिकार की तलाश में निकलते हैं तथा पैरों से दबने या स्पर्श होने पर डंक मारते हैं। वृश्चिक प्रायः काले भूरे रंग के होते, 2-3 इंच तक लंबे होते हैं। शरीर में लगभग 5 खंड होते हैं तथा एक पूंछ होती है। पूंछ के अंतिम भाग में तुंड होता है, इसी से वृश्चिक डंक मारते हैं।
संदर्भ चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 23 में वर्णन किया है। सुश्रुत स्थान कल्प स्थान अध्याय 8, अष्टांग अध्याय, उत्तर तंत्र अध्याय 37, माधव निदान अध्याय 69। वृक्षक की उत्पत्ति, भेद एवं संख्या। मंद विष वाले वृक्षक 12 प्रकार, मध्य विष वाले वृक्षक 3 प्रकार, तीव्र उग्र या महाविष वाले वृक्षक 15 प्रकार। वृक्षक की उत्पत्ति गाय भैंस के गोबर के सड़ने से मंद विष वाले वृक्षक की उत्पत्ति होती है। काष्ठ के सड़ने एवं ईंटों से मध्यम विष वाले वृक्षक की उत्पत्ति होती है। मृत सर्प उसके सड़े अंडों से विष से मृत प्राणियों के सड़ने से तीव्र विष वाले वृक्ष की उत्पत्ति होती है। वृक्षक दंश के प्रमुख लक्षण होते हैं कि स्कॉर्पियन बाइट इज वेरी पॉइजनस, फास्ट एक्टिंग, बर्निंग लाइक फायर, recurrent upward movement of poison of a scorpion, intense pain at the site of scorpion sting, bluish blackish colorization of the sting region, tearing type of pain at the site of a sting. next है वृक्षक दंश की साध्यता असाध्यता। वृक्षक दंश मनुष्य के हृदय, नासिका, नाभि एवं जिह्वा में होने वाले असाध्य को जाता है। नेक्स्ट वन है आपका दंश स्थान में मांस कटकर गिरने लगता है पर असाध्य होता है। अत्यंत तीव्र वेदना होने पर असाध्य होता है। वृक्षक दंश की घातक मात्रा एवं घातक काल, वृक्षक विष की घातक मात्रा एवं घातक काल दोनों ही अनिश्चित होते हैं। वृक्षक दंश में व्यक्तियों की मृत्यु प्रायः नहीं होती। शिशुओं में वृक्षक दंश में कई बार विशेष शोध के कारण मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट वन है आपका वृक्षक दंश की चिकित्सा। ठीक है, इसके बाद की मैं बात करूँ तो वृक्षक दंश की चिकित्सा। डंक के स्थान पर 3 से 4 इंच ऊपर रबर या रस्सी या कपड़ा कसकर बांध दे और विद स्थान पर चीरा लगाकर रक्त विष दबाकर बाहर निकाल दे। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन द्रव लगाएं। द्रव स्थान पर सेहन करना चाहिए, स्वेदन करना चाहिए। स्वेदन के बाद सेंधव लवण एवं घृत से अभ्यंग करें। उष्ण औषधि एवं जल से परिषेक वाहन एवं स्नान करना चाहिए। रोगी को पाचन शक्ति के अनुसार उसे घृत पान करना चाहिए। सुश्रुत ने उग्र विष वाले एवं मंद विष वाले दोनों के ही वेग को अलग अलग बताया, उनकी चिकित्सा भी अलग अलग करने को बताया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपका उग्र एवं मध्य विष वाले वृक्षक दंश की चिकित्सा। सर्पदंश के समान चिकित्सा करनी चाहिए। दंश के चारों तरफ स्वेदन करके स्वच्छ कर हरिद्रा, सैंदम, त्रिकटु, शीर्ष पुष्प एवं फल चूर्ण का प्रतिसारण, तुलसी पत्र को बिजौरी, नींबू के रस एवं तथा गौमूत्र के पीसकर लेप करें। स्वेदन हेतु शुष्क गोबर से सेक कर घृत में मधु एवं शर्करा मिश्रित कर पान करें। मंद विष वृक्षक दंश की चिकित्सा। कोल्हू के ताजे तेल से परिषेक करें। विदारी गंध आदि गण से सिद्ध तेल से सेक करें। शीरीष आदि विषद द्रव्य की उत्कारिता से स्वेदन करें। विषगंध द्रव्य सुपना, एला, तेजपत, नागकेसर से सिद्ध गुड़ का शरबत पिलाएं। मोर, मुर्गे का पंग, सेंधव तेल एवं घृत से धूपन करें। आदर्श कर दंश स्थान पर नौसर आदि एवं चूना संभाग में लेकर करें। उसके बाद अथवा हड़ताल एवं नौसर आदि को जल में पीस कर लेप करें। श्वेत अपारजिता मूल का चूर्ण अथवा दंती बीज को पीस कर लेप करें। प्रातः संजीवनी बटी 500 मिलीग्राम, शिला आदि बटी 500 मिलीग्राम, चूषाण 1 से 2 मात्रा। सम्यक पत्ते का पारण। स्कॉर्पियन लेटेस्ट डेवलपमेंट में से स्कॉर्पियन बाइट कहते हैं। इंडियन रेड स्कॉर्पियन इज स्मॉल इन साइज एंड इज वेरी पॉइजनस। द ब्लैक स्कॉर्पियन इज लेस पॉइजनस, साइलेंट सिम्पटम, intense pain and mild swelling, vomiting, diarrhea, hypersalivation due to the release of catecholamine, develop hypertension, toxins, myocarditis, and the pulmonary edema, vascularization, muscle span, respiratory paralysis, acute pancreatic and hemostasis abnormalities, management principles, local infiltration with 1% lidocaine for the pain, antivenom 5 to 10 ml over 10 to 30 minutes, and hypertension 5 mg singular nephrotopic in pulmonary edema, IV furosemide, oxygen, aminophylline on oral parazopin, other symptomatic management. Next, अलर्क, विष, रेबीज और हाइड्रोफोबिया। आयुर्वेद के प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों में अलर्क विष की विस्तृत विवेचना प्राप्त होती है। वस्तुतः अलर्क विष रोग कुत्ता, बंदर, गीदड़, लोमड़ी, श्रृंगाल आदि के दंश से फैलता है। मनुष्यों में प्रायः पागल कुत्ते या श्रृंगाल के काटने से अलर्क विष की उत्पत्ति अधिकार पाई जाती है। सामान्यतः सभी विषयों का कुत्ता विषाक्त नहीं होता। जो कुत्ते इस विष को ग्रस्त और उन्हीं के काटने से अलग विष की उत्पत्ति थे। प्रमुख संदर्भ चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 23, सुश्रुत संहिता कल्प स्थान अध्याय 7, अष्टांग अध्याय, उत्तर स्थान अध्याय 38, माधव निदान अध्याय 69, भाव प्रकाश मध्यखंड अध्याय 68, भेषज रत्नावली अध्याय 72, परिभाषा
कुत्ता, श्रृंगार इत्यादि के स्वभावतः विषग्रस्त होने पर उपरांत उनके मनुष्य द्वारा मनुष्य के दंश करने से उत्पन्न विषजन्य रोग को अलर्क विष कहा जाता है। अलर्क पर्याय अलर्क विष जल संताप, शिवन, रेबीज, हाइड्रोफोबिया इत्यादि। निदान विष के पागल हुआ कुत्ता के श्रृंगार, रीछ, व्याघ्र इत्यादि द्वारा मनुष्य को दंश करने से अलर्क विष की उत्पत्ति होती है। संप्राप्ति इत्यादि के पश्चात शत स्थान में विषाणु संज्ञावाही स्रोतस के द्वारा मस्तिष्क के पहुंच जाने पर शोथ उत्पन्न होता है। तत्पश्चात सुषुम्ना कांड, लाल ग्रंथि आदि संपूर्ण अश्रु ग्रंथियों या विषाणु अभिषिक्त होकर अलर्क विष नामक रोग की उत्पत्ति होती है। पागल कुत्ते के लक्षण निम्न प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट वन है कि कुत्ते के मुख से निरंतर लाल स्राव होता है, वह अंधा और बहरा बनकर बिना प्रयोजन दौड़ता है। कुत्ते की पूंछ, हनु और कंधे झुके रहते हैं, मुख नीचे की ओर रहता है एवं सिर में वेदना होती है। कुत्ते के अतिरिक्त श्रृंगार बिल्ली एवं हिंसक प्राणियों को काटने एवं शरीर में जकड़ाहट, पिपास, मूर्छा आदि लक्षण उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट वन है आपका अलर्क विष के प्रमुख लक्षण क्या है। तो निम्न लक्षण व्यस्त होते हैं। लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ साइट ऑफ बाइट, उसके बाद ऊजिंग ऑफ ब्लैक कलर्ड ब्लड फ्रॉम साइट ऑफ बाइट, एंजाइना, कार्डियक पेन, हेडेक, फीवर, एक्सेसिव थर्स्ट, इचिंग, स्टिफनेस, फेंटिंग, प्रिकिंग पेन ऑफ टाइप ऑफ पेन, डिस्कलाइजेशन, पर्टिकुलर कन्फ्यूजन, बर्निंग एट द साइट ऑफ बाइट, इन्फ्लामेशन, पेन, इन्फ्लामेशन, सेप्सिस और स्वेलिंग, ग्लैंडुलर स्वेलिंग, ब्लिस्टर्स, ग्लैंडुलर स्वेलिंग एट द साइट ऑफ बाइट, रेडिश पैचेस। साक्षेप निदान की मैं बात करूँ, कुत्ते के काटने का इतिहास मिलता है। रोगी जल से दूर भागता है, रोगी अत्यधिक भयग्रस्त हो जाता है। अलर्क में जो है, ठीक है, वो ये है कुत्ते के काटने का इतिहास मिलता है, रोगी जल से दूर हो जाता है, रोगी अत्यधिक भयग्रस्त एवं संसद दिखाई देता है। ब्लड कल्चर में रेबीज वायरस होता है। धनुवर्त की मैं बात करूँ, टेटनस की, तो लोहे इत्यादि से आघात का मिलता है। ऐसा मतलब रोगी पानी से दूर नहीं भागेगा, रोगी में बार बार आक्षेप आते हैं। उसके बाद ब्लड कल्चर करने पर बैसिलस टेस्टाइस के जीवाणु मिलेगा। असाध्य लक्षण है, पुरुष में जिस पशु ने काटा हो उसी समान जब वह चेष्टा एवं शब्द निकालता है तब असाध्य होता है। व्यक्ति यदि उसी पशु को दर्पण, जल इत्यादि में अचानक देखता है तो वह असाध्य हो जाता है। जल त्रास के लक्षण है कि यह एक अधिक विशिष्ट स्थिति है। आचार्य वांगभट ने स्पष्ट कहा है कि पुरुष कुत्ते इत्यादि से न काटे, जल के स्पर्श, शब्द स्पर्श एवं या दर्शन के डर जाता है और उसे रोमांच एवं संत्रास होता है, उसे जल संत्रास होता है और यह घातक लक्षण होता है। जल से डरते हुए मनुष्य का असाध्य समझते हैं। चिकित्सा है, अलर्क विष के चिकित्सा करनी चाहिए। निदान, परिवर्जन, विषाक्त जंतुओं के बचाव करना चाहिए। यदि पागल कुत्ते का पहले से ही पता चल जाए तो उसे कैदी करके रखे अथवा मार देना चाहिए। शोधन चिकित्सा, तीक्ष्ण वमन होना है, तीक्ष्ण विरेचन और शमन चिकित्सा। अलर्क विष से निम्नलिखित शमन चिकित्सा, स्थानीय दंश स्थान को दबाकर दूषित रक्त निकाल देना चाहिए। रक्त निकालने के पश्चात दंश स्थान का गर्म घृत से दहन करना चाहिए। दहन के बाद दंश स्थान पर विभिन्न प्रकार के अगत का लेप करना चाहिए। काटे हुए स्थान को कार्बोक साबुन से अच्छी तरीके से धो दें, फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड डालकर व्रण को प्रक्षालित करने पर पोटेशियम परमैंगनेट के घोल के साफ करें और पश्चात एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से व्रण को साफ करना चाहिए। प्रमुख लेप है कि शीरीष के बीज की स्नूही में पीस कर लेप करें। अपमार्ग स्वरस का लेप, अर्क शीर का लेप, प्याज के रस से मधु में लेप। प्रमुख अभ्यंतर योग है धतूरे के साथ श्वेता पराजिता और पुनर्नवा का सेवन। तिल कलवक, तिल तेल, अर्क चीर तथा गुड़ का सेवन। अपमार्ग मूल के चूर्ण को शहद से मिला लें। धतूरे के पील पत्ती एवं गुलत 6 ग्राम को तंडुलोदक से पीस कर पिलाएं। धतूरे का पानी का स्वरस गौग रक्त, पुराण रक्त और गौदुग्ध समान भाग में लेकर एक साथ घोटकर 40 मिलीलीटर की मात्रा में 2 बार दे। चावल को पीसकर उसे पिंड को बीच बीच में मेढ़ के लोम रखकर निगलने से अलर्क विष शांत हो जाता है। अंकोष्ठ मूल के क्वाथ में घृत मिलाकर पान करा। आदर्श चिकित्सा पत्र है कि निदान, परिवर्जन करना चाहिए। तीक्ष्ण वमन, विरेचन, विषाक्त अगत का स्थानीय प्रयोग, लेप, विषाक्त अगत का घृतपान, शरपंखा 10 ग्राम, धतूरा 5 ग्राम, चावल 5 ग्राम की कचौरी का प्रयोग। नेक्स्ट है संजीवनी वटी 500 मिलीग्राम, भीम रुद्र रस 250 मिलीग्राम, जल से 1 से 4 मात्रा और सम्यक पथ्यापत्य का सेवन। व्हाट इज रेबीज? रेबीज इज अ वायरल एन्सेफलाइटिस ट्रांसमिटेड इन द सलाइवा ऑफ द इन्फेक्टेड एनिमल. Rabies is the most prevalent in the dog, foxes, wolves and jackals. Transmission when the virus is introduced into the bite wound or open cuts in the
the skin on the membrane. Individual exposed to the aerosolized rabies virus in the laboratory recipient of the infected cornea. Sign and symptoms. Incubation periods varied from 9 to 90 days in the majority of cases. Promidernia symptoms: pain, irritation, discomfort at the site of bite, fever, anxiety, depression, intolerance of the loud sounds, hoarseness of the voice and sense of constriction in the throat, difficulty in swallowing, slight rise of temperature. Main symptoms: hydrophobia. A period of assessment is common during the patient becomes violent, hallucination, altering with the liquid interval. Other features: meninges, cranial lesions, third, seventh, eighth nerve spectroscopy, fluctuating body temperature and blood pressure, salivation, sweating, and tachycardia. Death may occur from hydrophobic span. Diagnosis: immunofluorescent testing, viral detecting, antibody detecting, postmortem diagnosis by observing whether of the negative bodies in the brain. मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल एक्टिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है, साइड इफेक्ट इम्यूनाइजेशन होना चाहिए. ह्यूमन डिप्लॉयड स्ट्रेन वैक्सीन इंट्रोड्यूस एक्सीलेंट level at the risk of neuroparalytic complication. IM injection 1 ml on the day of 3, 7th, 14th, 30 and 90 should be given, and injection must be given to the deltoid or anterolateral thigh in the infants, not into the buttock. Next is side effect: irritation at the site of infection, headache, fever, and flu-like illness. Passive immunization: administration of RIG 20 IU per kg human rabies immunoglobulin or 40 IU per kg heteroglobus RIG once at the beginning at the anti-rabies prophylactic to provide the immediate antibody until the patient respond to the vaccination by actively producing the antibody. RIG can given up to 7 days after administration of the patient tissue culture. Vaccines after 7 days. RIG is not indicated because an antibody response to vaccination should be have occurred. RIG should be infiltrated around and into the wound even when the lesions have begun to the heal. Cause of death despite post-exposure vaccination: inadequate wound cleaning, delay in the starting vaccine, injection of vaccine into the buttock, lack of passive immunization, use of corticosteroid. नेक्स्ट वन है लूटा दंश, स्पाइडर बाइट, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे. बाय.